How many of you have faced this in test? Time is running, questions are flashing, and suddenly beep, and section ends. And the worst part is this that you can't go back and correct it. One silly calculation mistake, one question marked in hurry, it's gone forever. And this is exact reality of NORCET prelims. And this test is not just about your knowledge. Okay, it's also about whether you can beat the clock without panicking. And if you don't prepare a time management strategy now, you will lose marks to the questions that you already knew. And I don't want that happening to you. So I am back with another video in which I am going to tell you the time management strategy. So let's not waste our time and get into the video. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. I have cracked NORCET and other central government exam in my very first attempt, and that too without coaching, and got a rank under 100. So I'm here to help you do the same. So I'm back with another video in which I'm going to tell you the time management strategy for NORCET prelims, how you can manage your time and get yourself saved from losing marks to the questions that you already knew but marked in hurry or didn't read the question correctly, or maybe you did some calculation mistakes and all that. So all this game is of time management, and to stay calm is also very important. So just get into the video. Okay, so first of all, let me tell you the NORCET prelims exam pattern. So there will be 90 minutes qualifying exam, which will have 100 MCQs. So 100 MCQs होंगे, 80 from nursing and 20 from non-nursing. There will be 5 sections. ठीक है, जो सबसे पहले 4 सेक्शंस होंगे वो नर्सिंग के होंगे, उसके बाद लास्ट सेक्शन एक आएगा नॉन नर्सिंग का. ठीक है, हर एक सेक्शन में देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ईच एंड यू विल बी गेटिंग 18 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन. Okay, there will be 5 sections, 18 minutes each, and every section is having a 20 questions each in this thing. The twist is that, well, there is section A, 18 minutes are there for that section, there will be 20 questions. After the 18 minutes gets over, the section will be closed forever. You can't go back and correct that section. Okay, so this is the main twist. Okay, so this is the main time game when you get time stuck. Okay, so see how we can manage this time. So I'm going to give you 5 tips to manage your time during exam in the exam hall. Okay, so the first point is mindset before each section. So जब भी आपके पास section आएगा, so you have to not panic. Okay, first thing that you have to do. Second thing, you have to take a deep breath. Third thing is that you have to remind yourself before starting the section that roughly you have 40 seconds for each question. तो अगर आप एक क्वेश्चन पे 40 सेकेंड लगा रहे हैं, तब आपके टोटल 13 to 14 मिनट्स लगेंगे. ठीक है, फॉर 20 क्वेश्चंस. ओके, सो आपको अपने आप को दिमाग में बैठाना है कि यू हैव लेस देन 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, रफली 40 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. सो दिस माइंडसेट शुड बी क्लियर बिफोर बिगनिंग द सेक्शन. Okay, so remember this thing that I don't need perfection, I need smartness right now. Okay, so the second point is the 30-second rule. So 30-second rule क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन is taking more than 30 seconds for you to think and read, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो और उस क्वेश्चन को पढ़ने या सोचने में आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और स्टिल आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उसका आंसर क्या है, डोंट फाइट विद इट. पे आप मत अटकिए. ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि लोग एक एक क्वेश्चन, कभी कभी किसी क्वेश्चन में अटकते हैं ना, तो उस पर 2 या 3 मिनट लगा देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं. सो फाइटिंग फॉर 1 क्वेश्चन विल कॉस्ट यू 3 to 4 अदर क्वेश्चन. सो डोंट डू दैट. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर रहा है इन थिंकिंग, इन रीडिंग, मतलब कंबाइंड आपका 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में प्लस उसके बाद उसका आंसर सोचने में, ठीक है, और अभी भी आप श्योर नहीं है उस आंसर पे, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको बेस्ट गेस लग रहा है वो आप मार्क कीजिए और उसको रिकंसीडर वाले ऑप्शन में डाल दीजिए. उस क्वेश्चन पे अटके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. हो सकता है कि उस क्वेश्चन पे अटके रहने की वजह से आपको बाकी क्वेश्चन पे कम टाइम लगे. ठीक है,
Okay, now I am third point is I am going to tell you the sequence in which you have to attempt the questions. तो sequence क्या होता है कि first 7 to 8 minutes, ठीक है, जैसे ही सेक्शन खुलता है, ठीक है, आपको 7 से 8 मिनट पहले पूरा सेक्शन एक बार देखना है, ठीक है। देखना क्या है, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसका आंसर आता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो जो आपको आते हैं, जो आप श्योर हो 110% श्योर हो कि इसका आंसर यही है, वो वाले सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, गो थ्रू करो पूरे सेक्शन से एक बार, ठीक है। पहले जो 8 9 या 10 मिनट ले लो मैक्स टू मैक्स, आप पहले 10 मिनटों में वो सारे क्वेश्चन कर लो जो आपको आते हैं, जिस पे आप 100% श्योर हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी जो आप एलिमिनेट करके श्योर हो रहे हो, वो वाले क्वेश्चन भी मार्क कर लो और उसको रिकन्सिडर वाले ऑप्शन में डालो, ठीक है। अब बीच में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहे होंगे, मे बी लेंदी क्वेश्चन होंगे, उनको आप स्किप करो, उनको इसमें मत अटैम्प्ट करो, वो हम बाद में अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले में आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपको श्योर आते हैं, ठीक है, और जो आप पढ़ के उनके बारे में श्योर हो, ठीक है। सबसे पहले आप पहले 10 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस कर लो, ये ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो लेंथी होंगे या कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, उनको आपने छोड़ा है। अब ये नेक्स्ट के 4 या 5 मिनट में आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और वो ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं जो आप नहीं पढ़ पाए या बहुत बड़े थे, आपको लगा कि यार ये तो मेरा टाइम कंज्यूम करेंगे, इनको बाद में पढ़ूंगा, तो उनको आप बाद में पढ़ने के लिए जिनको आपने रखा है वो करेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में। अब हमारे पास बचे हैं 3 मिनट, उस 3 मिनट में हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आपके लिए और जिनमें आपने गेस वर्क किया है, ठीक है। अब आपने जिनमें गेस वर्क किया है, गेस वर्क इन द सेंस नॉट द ब्लाइंड गेस वर्क, द गेस वर्क दैट इज स्मार्ट, ठीक है, जो आपने एलिमिनेट करके ऑप्शंस को गेस वर्क किया है, ठीक है, कि ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं ही होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में से मेरा बेस्ट 90% श्योर हूँ कि मैं ये वाला आंसर है, वो वाला जो वो टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको लास्ट के 2 to 3 मिनट्स में करने हैं। द क्वेश्चंस दैट यू आर ट्रिकी अबाउट, द क्वेश्चंस दैट यू आर कंफ्यूज अबाउट, वो आपको लास्ट के 2-3 मिनट में करने हैं। तो हमारे इस तरह से 18 मिनट में हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे विद कंसिडरिंग द क्वेश्चंस दैट आर लेंदी, ट्रिकी और कैलकुलेशन बेस्ड। सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ। सो फर्स्ट 10 मिनट्स में आप वो सारे सेक्शन से गो थ्रू करेंगे, प्लस वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो इजी हैं और आपको आते हैं, ठीक है। जो गेस वर्क वाले क्वेश्चन है जो आपको आते हैं पर आप श्योर नहीं हो अभी, उसको मार्क फॉर रिकन्सिडरेशन वाले पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में हम कैलकुलेशन बेस्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। फिर लास्ट के 2-3 मिनट्स हमने जो रिकन्सिडर वाले ऑप्शंस में डाल रखे हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी सेम फॉर एवरी सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन होगा हर सेक्शन को आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, ठीक। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज एक्यूरेसी ओवर पैनिक। सो डोंट रश टू मच सो दैट यू नो मिस रीड द क्वेश्चंस। ओके, आपको भागना नहीं है चीज़ों को लेके कि अरे यार 18 मिनट है, 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं। उस चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि भाई आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ी जा रहे हैं, आपने नॉट ही नहीं पढ़ा क्वेश्चन में, एक्सेप्ट ही नहीं पढ़ा क्वेश्चन में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ना बहुत बार हम पढ़ रहे होते हैं बट हम एब्सेंट माइंडेडली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी अटेंशन के साथ पढ़ना है और हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है तो मैंने वो तो वैसे भी आपको बोला है कि वो आपको अगले स्लॉट में करना है। पहले 10 मिनट में तो वही क्वेश्चन करने हैं जो मतलब ईजी हैं और आपको आते हैं, आप 100% श्योर हो उन क्वेश्चन को लेके। तो हर क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई टू रीड 2 टाइम्स, ठीक है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है हम पहले रीड में वो क्वेश्चन जो है वो हम उसको वो कर देते हैं, मतलब कोई एक पॉइंट जो होता है जो इम्पॉर्टेंट है, मेन है, वो हम कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, कभी कभी निगलेक्ट हो जाता है, हम करते तो नहीं है बट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ट्राई टू रीड योर क्वेश्चन ट्वाइस, ठीक है, उसको बस 2 बार नज़रों से घुमाओ, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मार्क योर आंसर्स। मेक श्योर टू नॉट पैनिक एंड हैंडल दिस विद कामनेस, बिकॉज जितना आप पैनिक करेंगे उतने आपके क्वेश्चंस भी छूटेंगे एंड उतना नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा, बिकॉज वन सिली मिस्टेक और दैट कैन कॉस्ट यू सो मच, दैट कैन ड्रॉप योर रैंक टू सो मच, ओके। बिकॉज एक क्वेश्चन का भी 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपको 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। ओके, now my last point is section reset is कि when your section gets over just forget it,
ठीक है, आप उसका रिग्रेट होल्ड ऑन मत कीजिए टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। इफ़ कभी कभी ऐसा होता है ना, इन एक सेक्शन में वी स्किप्ड सम क्वेश्चन और वी मार्क्ड सम क्वेश्चन बाय मिस्टेक, हमें सी ऑप्शन करना था, वो गलती से हमसे बी हो गया, ठीक है। अब उस चीज़ का रिग्रेट तो आपको है, आपने रियलाइज़ कर ली ये मैंने मिस्टेक कर दी, अब वो रिग्रेट आगे लेके मत जाओ, ठीक है। स्टार्ट योर नेक्स्ट सेक्शन विद अ फ्रेश माइंड, उस चीज़ का बोझ लेके मत चलो, क्योंकि फिर क्या होगा, वो सेक्शन तो बिगड़ा जो हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन भी बिगड़ जाएगा। सो मेक श्योर टू नॉट कैरी ऑन योर रिग्रेट टू द नेक्स्ट सेक्शन, फॉरगेट इट, जो हो गया वो हो गया, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन एकदम फ्रेश माइंड से दो, जैसे आपका एक सेक्शन खत्म होता है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन, ओके। And guys, always remember this thing in prelims, the people, those who have qualified prelims and those who have not qualified prelims, they both know the same syllabus, but the only difference or the real difference is only the way they kept their calm, and also the way they handled the situation and managed their time, okay। So the only difference is between that, जिसने क्वालिफाई किया जिसने नहीं किया, दोनों ने सेम ही सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। द ओनली डिफरेंस इज हाउ दे हैव केप्ट देयर काम एंड हाउ दे हैव मैनेज देयर टाइम। सो ट्रेन योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, and if this video helped you guys, please don't forget to subscribe to my channel, and also share it with your friends and classmates those are preparing for NORCET and other central government exams. So do subscribe to my channel if you really like my content, and guys, if you want me to make a video about non-nursing, what we should focus on non-nursing, in non-nursing, and how we can cover that, please comment down below. I'll surely make a video about that. Please comment down below non-nursing. I'll surely make a video about that soon. It will be uploaded by Tuesday or Wednesday, okay। So stay tuned, and if you want to know the strategy for last month revision strategy, I've already uploaded my video, and if you want to reduce your negatives, I have also uploaded that video, so that you can check that out. And I have also given you the topics that you should revise or must revise topics of subjects, of important subjects, I've already uploaded. You can check that out. The link of these videos will be in my description. You can go through the description and find the links, and go watch it. It may help you. So take care, and we'll meet soon. And if you are facing any problem during your preparation, you can always comment down below. I will be always glad to help you all. And thank you for all your love and support. It really means a lot to me. And I'll meet you soon on Tuesday. So तब तक के लिए bye bye. Keep studying, keep hustling, and we will grow and grow together. तब तक के लिए bye bye.